Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna. So, मुझे कोस्ट पर आना कोस्ट भी making post. So, uh, okay, okay. Yes, Prabhuji. So we started the first class. Some devotee really it was really tough. Somebody was sharing was some tough. You know, difficult. So let's see. It's not tough. Actually, we discussed so many things. For the first time listen this could be more. But overall, the Bhagavad Gita, Uddhav Gita, we are actually studying another study. Another study means wherever the situation, the time, plus circumstances, the Uddhavita started, or the time, place, circumstances, the Bhagavata started, we just discuss. So there's some uh, history or an incident or evidence what happened in two cases and also some philosophical things. So we discussed that Bhagavad Gita, as per our knowledge concern, that Bhagavad Gita starting से पहले that so many times Duryodhan got chance for from different source. Vidur, Krishna himself, and of Pandav, that no, no need to do some battle, but only give some five villages, उनकी जो share करो. But he was adamant. He was not. So Bhagavata Mahabharata हुआ, then plus Bhagavata started. And in between, Bhagavan Krishna made actually Arjun as the instrument. उसको although Arjun was devotee, but made such a मतलब, situation, the Arjun out of Jogamaya, not Mahamaya, he will start show ka moho, he become moho actually. He become moho, means the duality, uh, attachment. Then Bhagavata, using Arjun, Krishna spoke Bhagavata. That is the Bhagavata history. And Uddhav Gita, as we discussed before Uddhav Gita, we discussed the Brahman cursing to Yadu. Then finally, the Mausul Lila happened, and Uddhav approached to Dwarka and requesting. Okay, Uddhav understood the Krishna का जो इच्छा है. So then Uddhava approached and he asking, I am now deeply abjured. क्योंकि Uddhava, why is he asking? Krishna told him now, Uddhava was saying, I will go with you to the Dham. Krishna saying, no, you will not go now. You just stay here. क्यों? On my behalf, you have to do some duty, some job, some seva for me. Because I have not gone to Badrikast in my life, 125 years. Have gone to Jamraj Lok, I have gone to Mahavishnu, I have gone to Bali Maharaj, I have gone to Mathura, Dwarka, everywhere actually. In the Surgulok also to return the kundal of the Aditi Mata, like that. So I have gone so many, all from plant systems, but I have not gone one place. That is the Badrika Ashram.
So on my behalf, please go and give knowledge and my sangha to the Rishi of Badigas. So then Uddhava thought, okay, then he asks, please instruct something. How I will accomplish your instruction. आप तो इतना बड़ा सेवा दे रहे हो करने के लिए, मैं आपको सेवा कैसे करूंगा? मुझे कुछ नॉलेज दो। क्यों? वो खुद ही फील कर रहा है आउट ऑफ ह्यूमिलिटी और लॉर्ड्स लॉर्ड्स because Bhagavad Gita, through Bhagavad Gita, Lord wanted to give teaching to all throughout the world. Through Uddhav Gita, तो teaching छूट गया था क्योंकि उद्धव गीता around 1100 verses, 24 chapter. Bhagavad Gita 700 verses, 18 chapter. कुछ एक्स्ट्रा वर्सेस है जो एक्स्ट्रा डिटेल जो भगवत गीता में नहीं दे पाए थे भगवान। यहाँ तक भी परम स्थिति जो भगवान ज्ञान दिए थे ब्रह्मा फर्स्ट टाइम, वो चीज भी मतलब नहीं दे पाए थे। सो उद्धव आउट ऑफ ह्यूमिलिटी इज आस्किंग नाउ, प्लीज गिव सम नॉलेज। सो दैट इज द background how the Bhagavad Gita and Uddhav Gita started. He's saying, I'm deeply absorbed in the concept of I and mine. Actually, he's not absorbed. He's a devotee. He knows. I will discuss. So this is the background how Uddhav Gita started. So, because we are not going like just like a sequential study, there is so many type of study. One is called sequential study. Okay, and that is called thematic study. That is called the another study is called the as your choice sloka study. We are going analogous study. Analogous means what are the context, what are the Bhagavad Gita happened, like that how the Uddhav Gita happened, and what circumstance Krishna told what verse, what circumstance told to this verse to the like that we will be going. So sometimes what happens, sometimes we will jump from one chapter to another chapter in context and the relation to the Bhagavad Gita. But what we have planned, when you jump, the in between some verse will skip, will cover in the other next class, or will cover, we have give some connectivity so that जो पहली बार पढ़ रहा है सुन रहा है तो उसको भी मतलब मिस नहीं होगा। सपोज नाउ the contest Bhagavad Gita start with the duality attachment. Uddhav Gita start not actually duality attachment. He out of humility now how to accomplish the Krishna's instruction. He is feeling out of Lord's Yogamaya, out of humility, that that I am fully absorbed the concept of I and mine. That means see, I have also attachment. How can I give the knowledge to the people who are detached people? I am an attached person, and you want to say to give the knowledge to detached people. How I will accomplish that? Your instruction. Please give some knowledge to me. What should I tell? And the way what knowledge you want to share with them? Because they are all sannyasi. And like that, he is feeling the low, and this is Lord's power that Lord is putting Uddhava, so that through Uddhava he'll teach the detailed knowledge जो गीता में और ब्रह्मा को दिए थे उन्हें मिला था. So he start with a very interesting point. We'll discuss this point in the next class. He start actually you Yadu, he just giving one pastime of the Advaita Brahmana, and he's saying you become your guru. This is the most critical, misunderstood sometimes, but important. We'll discuss this point in the next class. But today we'll planning, what we planned. Today we have discussed last class, both have attachment. So we took one episode from the Advut Brahman and the Yadu. So he says that how attachment actually cause of all problems. So he just discussed the uh, you know just like in Bhagavad Gita, the first verse to up to last up to 46 verse, he just talked about the different points, not to fight because of attachment. Yeah. So overall attachment, the main reason that where Bhagavad Gita started. But here Uddhav Gita also that is in the uh, 24 Guru, 24 Guru, one person comes that is called the this verse, 11 chapters, 11 cantos, 7 chapter, 52. That is that how this Kaputar, that is Kaput, is attached to his family member,
Because of that, he also got lost. नाति स्नेह प्रसंग वा कर्तव्य क्वापि कनचित कुर्बन विनंते संतापम कपोत इव दीनधि. तो यहाँ पर ये चीज कर रहे हैं. दोज वन, यहाँ पर इंस्ट्रक्शन, वन शुड नेवर इंडल्ज इन एक्सेसिव अफेक्शन. यहाँ पर जो प्रसंग शब्द है ना, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट. प्रसंग मतलब संग होता है. प्रसंग मतलब कंप्लीटली संग, यानी प्रकृष्ट रूपण संग, यानी डीपली अटैच, डीपली अफेक्शनेट, डीपली कॉन्सर्न फॉर एनीवन और एनीथिंग. ओके, कहते हैं ना, मेरा बिना संसार चलेगा नहीं, मैं नहीं करूंगा तो कुछ नहीं होगा, लाइक दैट. सो दिस प्रसंग is saying that one should never indulge excessive affection or concern for anyone or anything, otherwise one will have to experience क्या, that कुर्वन बिंदन्ते संतापम. संताप मतलब होता है that is the suffering. संताप कर रहे हो, परेशान हो, कि एंजाइटी में हो, डिस्ट्रेस में हो, क्या संताप क्यों कर रहे हो, चिंता क्यों कर रहे हो. कहता है चिंतन, चिंता. चिंता मतलब मेंटल वरी, संताप करे. जस्ट लाइक गिव एग्जांपल, कपोत इव दिनधि. The diva intelligence denotes the major intelligence. Okay, just like foolish pigeon. Okay, कपोत में pigeon जैसे परेशान हुआ, इसी प्रकार जो फोबर आटास होता है, then also he suffer. That is the he is giving the lesson. So yesterday, I would say last class we discussed, because of lack of time, just going so fast. But we today we'll discuss some points from Acharya, what he says regarding this Kapoth example, and the next class how this is 24 guru uh, love, came to picture. Particularly, we are taking one guru actually, the Kapoth of what lesson he learned, but we didn't discuss the background, how this 24 guru came, love, coming the patient came. But we will discuss in next class so that we will not miss the link actually. Otherwise, in the analogous study, you may miss. First time you are hearing or understanding, you cannot catch the link actually. That's why we'll touch the point, our focus, our discussion. Then also after that, next class will connect the link actually, where the flow actually go. So like that. Today you see, I think is it visible, Prabhu? हरे कृष्ण प्रभु. हाँ प्रभु जी. Okay, okay, thank you. The verse says, नाति स्नेह प्रसंग वा कपत्य कोवि केनचित कुर्बान विन्नते से. Okay, you can see my arrow mark. I think arrow is yes. Kapot eva dinadi. So it says that over indulgence is not good, excess action not good. So in this that there is a commentary in Uddhav Gita. Just yesterday class somebody discussed. Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur written on commentary in the Uddhav Gita, the Gaudiya Bhashya. Okay. So he said in that everybody actually eternal servant of Krishna. Okay. If somebody give up the service and engage in service of anything else, that means the own enjoyment. Ultimately, one suffer like the following verses. Okay. So that's the point actually. मनुष्यों को किसी व्यक्ति का या किसी वस्तु के लिए अत्यधिक स्नेह या चिंता नहीं करनी चाहिए, अन्यथा उसे महान दुख भोगना पड़ेगा, जिस तरह की मूर्ख कबूतर भोगता है. ये एक्चुअली बातें. सो आगे हम लास्ट टाइम डिस्कस, विल नॉट टॉच डिटेल बट विल टॉच दैट पॉइंट व्हाट वी मिस एक्चुअली. So next, one by verse actually I discuss. Today we may discuss the verse, otherwise you go to that translation. You can see the screen as well. Okay. After that, what is saying? That's saying that एक कबूतर था जो अपनी पत्नी के साथ जंगल में रहता था. उसने एक वृक्ष के भीतर अपना घोंसला बनाया था और कबूतरी के साथ कई वर्षों से वहां रहता था. This is the first time actually discussing. Then he's saying, तब दोनों रहते थे. What he did actually?
कबूतर का यह जोड़ा अपनी गृहस्थ कार्यों में प्रति अत्यधिक समर्पित था। उनके हृदय भावनात्मक स्नेह से परस्पर बंधे थे। वो एक दूसरे के चित्तवनों, शारीरिक गुण तथा मन की अवस्थाओं से आकृष्ट थे। इस तरह उन्हें एक दूसरे को स्नेह से पूरी तरह बांध रखा था। तो यहाँ पर इस वर्ष में बता रहे हैं दैट उनकी बुद्धि, बुद्धिम बुद्ध्या बंध बंध धातु, मतलब कैसे उनका बुद्धि बंध गया। यानी यहाँ पर भक्ति सिंह ठाकुर कहते हैं the main cause of such mundane affection and attachment is forgetfulness of supreme lord, है ना। संसार में जो भी अटैचमेंट आता है whatever, that मेन कॉज क्या है? that forgetfulness. The living entity affection for the Lord and their attachment to him is eternal, है ना। जीव कृष्ण का नित्य दास, है ना, मवे वंश जीव लोग, है ना, ये पूरा नित्य दास है। बट जब इटर्नल रिलेशनशिप डिस्टर्ब होता है, then such pure affection attachment reflected in perverted manner, that is called the temporary object in material world. Okay, तो जो ये क्रिएशन होता है, रिफ्लेक्शन ऑफ हैप्पीनेस होता है इन टर्म्स ऑफ बिकॉज ऑफ द फॉरगेटफुलनेस। तो यहाँ पर है इतनी आपको गुणगान कर रहे हैं हस्बैंड वाइफ, ओके, कहते दुनिया ही पर है। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा सिद्धांत है, ऐसे सोचना नहीं चाहिए यार तो हस्बैंड वाइफ गुणगान नहीं तो कैसे रहेगा। नो, what is this scripture saying? Actually, as per rule, we should attach, no doubt. Otherwise, you cannot run a family life. But how to attach? As the social point of view से, जो health point of view से, as care point of view से, we have to take care. We are responsible. So, point that one is responsible, one is the attachment and the detachment. So कोई बंदा व्यक्ति का बोलेगा आई एम नॉट एक्चुअली डिटैच, आई एम एक्चुअली responsible. In name of responsible, okay, I take care my family, I take care of these things. In name of responsible, somebody say and be attached. That is also one extreme. In name of responsible, undue advantage ले रहे हैं, अटैच होता है। और दूसरी बंदा है, जैसे कि जानते हैं मेरा पत्नी मर गया, मेरा एक आंसू नहीं है, मैं मंदिर जन कर रहा हूँ, मैं मतलब रिनाउंस ले रहा हूँ। That is also not actually. I'm so detached. In name of detachment, if somebody become irresponsible, that is just not good. So we should not take a wrongly actual concept. So what is the balance? Two extremes are not good. What is balance? One should be detached with responsible. That means externally one should be attached, इंटरनली वन शुड बी डिटैच। उसकी हृदय कहाँ रहना चाहिए? भगवान के से। अब इनका हृदय कहाँ रह गया? ये एक्चुअली बॉडीली देहात्म बुद्धि में हो गया। दैट इज द पॉइंट एक्चुअली हियर एक्चुअली सेइंग, देहात्म बुद्धि हो गया और ये रेस्पॉन्स नाम से अटैच हो गया। रेस्पॉन्स नाम से अटैच नहीं होना, बट बी डिटैच, दैट इज द पॉइंट। देन फर्दर फाइनली इन द things goes in the 55 verses, what says it? 55 verses, भविष्य पर निश्चल भाव से विश्वास करते हुए वो प्रेमी जुगल की तरह जंगल के वृक्ष के बीच लेटते बैठते चलते फिरते खड़े होते बातें करते खेलते खाते पीते रहे। मतलब पूरा प्लानिंग साथ चलते चलते ऐसे करते रहे। फाइनल क्या हुआ? फाइनली इन द 56 वर्स से दैट तत्पश्चात कबूतरी को पहले गर्व का अनुभव हुआ। सॉरी, फिर बता रहे हैं 56 में क्या कर रहे हैं, हे राजन, कौन बता रहे किसको ये बातें? ये आप ध्यान दीजिए, भागवतम सुनते हैं, ये राजन शब्द बता रहे हैं 56 में, यम यम वांछति स राजन। ये राजन कहे, ये जदु राजा जो अवधूत ब्राह्मण बता रहे हैं। ये कथा को प्रश्न कौन प्रस्तुत कर रहे हैं? ये कथा प्रश्न कर रहे हैं कृष्ण प्रस्तुत कर रहे हैं। किसको? उद्धव को। और ये कथा कौन बोल रहा है? ये कथा बोल रहे हैं परीक्षित महाराज को सुखदेव गोस्वामी। वो कथा को कौन लेकर आ रहे हैं? सुत गोस्वामी बता रहे हैं समग्र। 4 लूप है ये कथा जो बोले, एक लूप अंदर 4th लूप है। तो राजन शब्द जो आता है, हे राजन, जब भी कबूतरी को किसी वस्तु की इच्छा होती है तो वो अपने पति को चाटू करता और करके उससे बाध्य करती है कि वो स्वयं भारी मुश्किल से उठाकर
भी उसे तुप्त करने के लिए वही करता जो वो चाहती थी। इस तरह वो उसके संग में अपनी इंद्रियों पर स्वयं नहीं रख सका। तो ये गोविंद भाष्य में भक्ति सिद्धांत ठाकुर लिखते हैं, materialist person who instead of accepting supreme lord are the only master of their senses think themselves to be equal to seekers engage in various activity in the world, the desire to gratify the senses and accumulate wealth, are the engineer pigeon acts whimsically to please engineered pigeon। एक होता है engineer engineered, है ना, एक होता है भोग करना भोगी। तो ये मेटेरियलिस्टिक जो बिजी रहते हैं, खास करके टेम्पररी मेटेरियल हैप्पीनेस विद ग्रॉस एंड सटल बॉडीज, यह एग्जांपल दे रहे हैं द मेल एंड फीमेल फिजिक। Okay, the conditioned soul who maintain too much affection and attach for material object suffer in the material existence, just like the male and female physique। तो यहाँ पर ऐसे फिर आगे क्या हुआ, तत्पश्चात आगे क्या हो रहा है, तत्पश्चात कबूतरी को पहले गर्व का अनुभव हुआ, जब समय आया आ गया तो उसे साध्वी कबूतरी ने अपनी पति की उपस्थिति में घोंसले के कई अंडे दिए। तो अंडे दिया, because she became pregnant, then give birth to some egg। और फिर आगे बताते हैं, जब समय पूरा हो गया तो उन्हें अंडे से श्री भगवान की अचिंत्य शक्तियों से निर्मित मुलायम अंगों तथा पंखों के साथ बच्चे उत्पन्न हुआ। हाँ, as time progress it's like living entity grown up। तो इसी प्रकार भक्ति ठाकुर कहते हैं श्लोक में, when conditioned soul becomes averse to supreme lord, then supreme lord spread the network of the illusion of in all their activity to increasing their aversion to his service। Those who do not display inclination for the service of supreme lord are already suitable mentality according to the desire and activity। in this way they pose themselves as enjoyer and become busy in trying to enjoy the material world। see, it's a natural है। यही बात भी ऋषभ देव अपनी बेटा को बताते हैं, एक बहुत उत्तम श्लोक बोलते हैं फिफ्थ कांटो में। कहते हैं ये जो ग्रंथि है ना, ये ग्रंथि क्या है, ये दोनों तरह ग्रंथि है ना, इट्स नॉट वन साइड ग्रंथि। जैसे मान लो मैं अटैचमेंट लैपटॉप में कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से, तो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से मुझे अटैचमेंट नहीं है कि मेरे रसगुल्ला से बहुत अच्छा लगता है, रसगुल्ला मुझे अटैचमेंट नहीं है। लेकिन ये जो अटैचमेंट है यानी द मेटेरियलिस्टिक अटैचमेंट है, खास करके मेल फीमेल का, ये अटैचमेंट क्या है, दोनों तरह का है। इसलिए एक श्लोक बोलते हैं 5.5.8 में, पुंस स्त्रिय मैथुन भाव मेतम तयर मित हृदय गंतिम आहु अतो गृह क्षेत्र सुताप सुताप्त भीति जनस्य मोह यम अहम एमति। तो कहते हैं मेल और फीमेल अट्रैक्शन जिसे टू साइडेड तयोर मिथ हृदय ग्रंथि, ये हृदय ग्रंथि को दोनों जो उनको खींचता रहता है। उसके पश्चात क्या होता है, उसके बाद गृह चाहिए, घर चाहिए, then once you got a home, 1 BHK 2 BHK 3 BHK, then also we need actually one खेती, अपना बिजनेस कहाँ पर धंधा चलेगा, then we need some suta, we need some children, then we need some apta, we need some relatives, then we need some dhan Vitahi, okay, that is the living entity moha, that is the janasya moha yam aham memeti, that is mama aham and mama, that is mamakar ahankar mitata। this is the actually attachment for the matters। don't feel that only those are gross devotees, not like that। this talk about the materialistic person, those only aim purpose है अपना इंद्र को खुशी करना, they don't know actually Lord। sometimes you misunderstood actually, no, you know, you shouldn't misunderstood। this is only for the materialistic people, those are only center of attraction, center of thought होता है, that is the body। but here यहाँ पर ये चीज बता रहे हैं, they don't know Lord। तो क्या हुआ, समय आया, then तत्पश्चात, तो फिर बाद में जब समय आया भगवान की कृपा से बच्चे होने लगे, कबूतर यह जोड़ा अपने बच्चे के प्रति अत्यंत स्नेहिल बन गया और उनकी तोतली चाह चाहचट हट को सुनकर अत्यंत हर्षित हुआ, है ना, क्योंकि उन माता पिता को यह अति मधुर लगती। इस तरह वो जोड़ा उन छोटे छोटे बच्चों का पालन पोषण करने लगा। हम देखते हैं घर में, हम बच्चे देखते हैं, तो बार पहली बार बोलते हैं, सारा माँ बाप खुश होते हैं,
मेरा बेटा बोलने लगा, गुड एक्चुअली, बट ऐसे नहीं खराब है, बट यहाँ पर ये बात ले रहे हैं स्वाटास, तो इसीलिए उनके साथ ये चीज हो रहा है ना। तो कॉन्डिशन सोल जनरली कॉन्डिशन तो अवर्स टू कृष्ण, यस, ओके, सो जनरली the constant soul hours to Krishna मतलब hours to serve Krishna, वो but devotee जो होता है their experience with the higher katha है ना। There is very nice verse comes in the Srimad Bhagavatam, actually what is the interest of the devotee, कहाँ पर है devotee को interest रखना चाहिए है, मतलब हमेशा devotee का interest क्या होना चाहिए, that is he talk to that what is the devotee place of interest, वहाँ कहते हैं न यत्र वैकुंठ कथा सुधापका, जहाँ पर वो कथा भगवान की कथा नहीं हो रहा है, कथा का नदी नहीं चल रहा है, न साधो भागवत दास, जहाँ पर भगवत की भक्त का मतलब भीड़ नहीं है, न तो यज्ञ से मखा महोत्सव, जहाँ पर महोत्सव नहीं हो रहा है, यहाँ पे सूर्योस्त लोक अपनी नवई सवयता, यहाँ इंद्र लोक हो स्वर्ग हो, तो वहां जाने की इच्छा करना नहीं चाहिए, यानी डिवोटी की इंटरेस्ट होना चाहिए उसी प्लेस में जहां पर भगवान की कथा के गुणगान होता रहता है ना, जहां पर मतलब कुछ संकीर्तन यज्ञ चलता रहता है, डिवोटी का समूह, वही प्लेस को हमेशा चुनना चाहिए। तो यहाँ पर ये बात बता रहे हैं डिवोटी जो होता है वो चुनता है, बट जो कॉन्शियस होता है उसका उल्टा करता है ना, तो इसलिए ये एक बात है। देन फर्दर वो आप क्या हुआ, ये माता पिता अपने पक्षी बच्चों के मुलायम पंख उनकी चहत हाट घोंसले के आसपास उनकी कूद फांद करना, उनका उछलने के और उड़ने के प्रयास करना देखकर अत्यंत हर्षित हुए, अपनी बच्चों को सुखी देखकर माता पिता भी सुखी थे। तो ये 16 से बताते हैं। फिर फर्दर क्या हुआ, स्नेह से बंधे हुए है ना, स्नेह से बंधे हुए हृदय वाले ये मूर्ख फकीर भगवान श्री विष्णु की माया द्वारा पूर्णतः मोहग्रस्त होकर अपनी छोटे छोटे बच्चों का लालन पालन करते रहे ना, ये नेचुरल है। देन फर्दर क्या हुआ, एक दिन क्या हुआ, परिवार के दोनों मुखिया यानी माता पिता अपने बच्चों के लिए भोजन तलाश करने बाहर चले गए, अपनी बच्चों को ठीक से खिलाने की चिंता में वो काफी समय तक पूरे जंगल में विचरते रहे। तो ढूंढते कहाँ अच्छा अच्छा खाना मिलेगा, मैं बेटा खुश होगा, मुझे मिला, बहुत बाप बाप अच्छा किया, तो ऐसे करके आगे गए। तो फिर बाद में 64 बताते हैं, 60, तो 63 बताते हैं, उस समय क्या हुआ, व्हाट हैपेंड, स्वयंवश जंगल में विचरण करते हुए किसी बहेलिये ने कबूतर के इन बच्चों को उनकी घोंसले के निकट विचरते हुए देखा, उसने अपना जाल फैलाकर उन सबको पकड़ लिया। सो इधर तो पॉइंट, जैसे हम कहते हैं ना भाई, हम कहते हैं क्या आएगा जाल फेंकेगा, हाँ, फंसना नहीं, हम खबर लेके कहावत कहते हैं है ना, वो आएगा शिकारी आएगा, दाना बिछेगा, दाना फेंकेगा, दाल दाल बिछाएगा, फंसना नहीं, तो ऐसे बोलते फिर हम फंस जाते हैं है ना कभी कभी। तो इस प्रकार यहाँ पर है, तो क्या हुआ, भेड़िया क्या किया, शिकारी था वो उसको ऐसे पकड़ा, और उसके बाद उसके बाद कबूतर तथा उसकी पत्नी अपने बच्चे के पालन पोषण के लिए सदैव चिंतित रहते थे, और इसी उद्देश्य से वो जंगल में भटकते रहते थे। समुचित अन्न पाकर अब वो अपनी घोंसले पर लौट आए। तो जब वापस आए है ना, तो जब वापस आए, अब देखे क्या हाल है, दैट इज द पॉइंट, अभी विल डिस्कस समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। तो क्या है, तो देखे हैं, जब कबूतर ने अपने बच्चों को बहेलिया के जाल में फंसे देखा, तो वो व्यथा से अभिभूत होकर, उसको बहुत चिंता हो गई और विचलित चिल्लाती हुई उनकी ओर दौड़ी, और बच्चे की भी उसके लिए चिल्लाने लगे। माँ को देखा तो माँ दौड़ी, और बेटा भी थे वो भी चिल्लाने लगे। तो ऐसे सभी बॉडी एक्चुअली क्राइड व्यथा से। फाइनली तो क्या हुआ, देन चूंकि कबूतर ने अपनी आप को गहन भौतिक स्नेह के बंधन से सदा बांध रखा था, इसलिए उसका मन व्यथा से विह्वल हो गया,
श्री भगवान की माया के चुंगल में होने से वो अपनी आप को पूरी तरह भूल गई और अपने असहाय बच्चों की ओर दौड़ती हुई वो भी तुरंत बहेलिया के जाल में फंस गई। तो इसलिए जब परेशानी आता है कहते ना, तो तुरंत विचलित होने से नहीं चलता है। तो वहां से धैर्य की आवश्यकता है और परामर्श की आवश्यकता है। तो ये इसलिए बिकॉज क्योंकि इंटेंस अफेक्शन होना गलत नहीं है, बट इंटेंस अफेक्शन हुआ तो इसलिए माया उसको डाल दे गया। जैसे आप सुनते भागवतम में, जब विदुर जी इतनी अच्छी बात बोलती थी, लेकिन जब लास्ट में कुछ बातें बोली दुर्योधन को अच्छा नहीं लगा। वो क्या, गेट आउट फ्रॉम हियर, मैं आपको तनख्वाह दे रहा हूँ, आपकी नाक में स्वाद छोड़ रहा हूँ, आप नहीं मार रहा हूँ, बट गेट आउट फ्रॉम हियर। तो महामाया की तरफ फंस गया। विदुर जी भक्त थे, उसको अच्छा हुआ, मैं भगवान का दर्शन करूंगा, शासन करूंगा। तो जब व्यक्ति इंटेंस अफेक्शन होता है तो वो बहुत गड़बड़ काम करता है। अब यहाँ क्या हुआ, अपनी खुद को बचा नहीं पा रहा है, वो खुद भी जाल में फंस गया। तो उसके पश्चात फिर अपने प्राण से भी प्यारे अपने बच्चों को तथा साथ में अपनी ही समान अपनी पत्नी को बेले के जाल में बुरी तरह बंद देखकर बेचारा कबूतर दुखी होकर विलाप करने लगा। अब देखा सामने हो रहा है, सब लोग छटपट हो रहे हैं, राइट, अपना बेटे बच्चे और पत्नी भी है। तो इसलिए जब ये चीज देखा तो वो भी परेशान होने लगा। तो फाइनली फिर क्या कहते हैं, कबूतर ने कहा, हाय जरा देखो तो मैं किस तरह बर्बाद हो गया हूँ। स्पष्ट से है कि स्पष्ट है कि मैं महामूर्ख हूँ, क्योंकि मैंने समुचित पुण्य कर्म नहीं किए। ना तो मैं अपने आप को संतुष्ट कर सका, ना ही मैं जीवन के लक्ष्य को पूरा कर सका। मेरा प्रिय परिवार जो मेरे धर्म अर्थ तथा काम का आधार था, अब बुरी तरह बुरी तरह नष्ट हो गया। हलाक करने लगा, हाय हाय होपलेस हो गया। तो क्यों, क्योंकि साथ सेल्फ डायरेक्शन खत्म हो गया, वो भी हताश था। तो फाइनली जब ये चीज देखा, तो जो उसकी जो पत्नी थी एक्चुअली, राइट, तो पत्नी, हाँ, तो क्या की, मैं तथा मेरी पत्नी आदर्श जोड़ा थे, सोलमेट थे, प्योर सोलमेट, आदर्श आइडियल सोलमेट। वो सदैव मेरी आज्ञा का पालन करती थी और मुझे अपनी पूज्य देवता की तरह मानती थी। किंतु अब वो अपने बच्चों को नष्ट हुआ और अपने घर को रिक्त देखकर मुझे पीछे छोड़ गई और हमारे वाले बच्चों को संत स्वभाव वाले बच्चों के साथ स्वर्ग चली गई। अब वो वहीं बैठ के विचार कर रही, क्या हुआ, सब लोग चले गए। तो अब फिर क्या हुआ, अब मैं वीरान घर में रहने वाला दुखी व्यक्ति हूँ। मेरी पत्नी मर चुकी है, मेरे बच्चे मर चुकी हैं, मैं भला क्यों जीवित रहना चाहूँ। मेरा हृदय अपने परिवार के बिचों से इतना पीड़ित है कि मेरा जीवन मात्र कष्ट बनकर रह गया है। ये ऐसे विलाप कर रहा है। और फिर ऐसे बोलते बोलते क्या कर रहा है, बोलता है, जब पिता कबूतर अपने विचार जब पिता कबूतर अपने बेचारे बच्चों को जाल में फंसे और मृत्यु के कगार पर दीन भाव से उन्हें अपने आप को छोड़ने के लिए करुणावस्था में संघर्ष करते देख रहा था, तो उसका मस्तिष्क शून्य हो गया और वह स्वयं ही बहेलिया के जाल में गिर पड़ा। एक होता है लैमेंटेशन, एक होता है रिपेंटेंस। ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। लैमेंटेशन जो होता है इग्नोरेंस होता है, और रिपेंटेंस होता है मोड ऑफ गुडनेस होता है। तो ये लैमेंट कर रहा है, रिपेंट नहीं कर रहा है, नहीं है। अरे क्या हुआ, मतलब जो तो चला गया चला गया। अब जो बच्चा है, जो जो बच गया उसको नहीं बचाना चाहते हैं, अपना जान को बचाना चाहते हैं और लैमेंट करता रहता है। सो इग्नोरेंट पीपल जो होते हैं, दे आल्सो किल देमसेल्फ, फ्यूचर किल करते हैं। जो बट जो सिंसियर रिपेंडेंस करता है, वो अपना शुद्धिकरण कर सकता है, प्यूरिफाई कर सकता है। तो फर्दर बाद में जब ऐसे हुआ, वो निष्ठुर बहेलिया उस कबूतर को क्या किया, देखा, हाँ, उसकी पत्नी को तथा उनके सारे बच्चों को पकड़कर अपनी इच्छा पूरी करके अपने घर के लिए चल पड़ा।
हाँ, तो फिर बाद में जब गया, यहाँ पर सबसे बड़ी इंटरेस्टिंग पार्ट, ये तो स्टोरी था बट व्हाट इज लेसन ऑफ स्टोरी। यहाँ पर कृष्ण भगवान ये बात बताना चाहते हैं, ये क्या कहना चाहते हैं, कहते हैं ये 63 के श्लोक में एक बात होते हैं, यह इस तरह है ना, हिंदू से, इस तरह जो व्यक्ति अपने परिवार के जीवन में अत्यंत आसक्त रहता है, भगवान कृष्ण कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, एवं, जो एवं शब्द आते हैं भागवत में, कभी आप एवं एवं पढ़ेंगे, इसका मतलब कुछ बातें बोल चुका गया था, कुछ वर्ष एवं हो कि तस्मात हो, इसका मतलब क्या है, ऑलरेडी पहले बता चुका है। एवं कुटुंबे संतात्मा द्वंद्वे आरम पतरी यत पुष्सान कुटुंबम कृपण सान बंधु सिद्धति। तो कहते हैं दैट इस तरह जो व्यक्ति अपने पारिवारिक जीवन में अत्यधिक आसक्त, खासकर बताए अत्यधिक, ये सब थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आसक्ति होना गलत नहीं है, बट इंटेंस और ज्यादा से एक्सपेक्टेशन ज्यादा है। कोई भी चीज आप करेंगे एक्स्ट्रा, वो भी खराब है। इसीलिए आप अच्छा ही खाना खाते हैं, कोई ज्यादा खा लेंगे इंडाइजेशन होगा। कोई भी चीज आप एक्स्ट्रा करेंगे तो वो लिमिट, तो वो भी खराब है। तो अत्यधिक, लेकिन एक चीज में ओवर लिमिट करेगा वो बुरा नहीं होता है। होली नाम का कितनी गुणगान करेंगे तो कभी भी आप उसका लिमिट क्रॉस नहीं कर सकते। बाकी में सब कुछ में है कुछ परेशानी। सो जीवन में अत्यधिक आसक्त रहता है, वो हृदय में क्षिप्त रहता है। कबूतर की तरह वो सांसारिक जौन आकर्षण के आनंद ढूंढता रहता है। अपनी परिवार का पालन पोषण करने में बुरी तरह व्यस्त रहकर कंजूस व्यक्ति अपने परिवार वालों के साथ अत्यधिक कष्ट भुगतता है। ठीक है, ये एक्चुअली लेसन दे रहे हैं, कृष्ण भगवान उद्धव को, थ्रो उद्धव गीता, थ्रो कबूतर, कबूतर की पास तक। फिर आगे क्या होता है, बहुत इंटरेस्टिंग बात है। ये कहते हैं यह प्राप्य मनुष्यम लोकम मुक्ति द्वारम अपावृतम गृहसु खगवत सक्त तम आरुध्य च्युतम विदु। ये बता रहे हैं, ये जो प्राप्त हुआ, क्या प्राप्त हुआ, मनुष्य जीवन, मनुष्य लोकम, ह्यूमन फॉर्म ऑफ बात हुआ, किसके लिए, मुक्ति द्वार के लिए, मुक्ति के लिए ये रास्ता खोला, मुक्ति द्वार के लिए प्राप्त करने के वाइड ओपन हुआ है। लेकिन गृहस्थ खगवत सक्त, जब कोई फैमिली मेंबर से रहता है, जैसे खग यानी लाइक जो स्टोरी पढ़े सुने अभी, वर्ड ऑफ द स्टोरी खगवत, लाइक सक्त यानी अटैच हुआ है, तम आरुद्ध चित्तम विदु, तो वो क्या होगा, ये फॉल डाउन करेगा। ये कंसिडर करो, समझो, विदु तो जानना, हाँ ये कंसिडर करो, ऐसे कोई होगा जिसने मनुष्य जीवन पाया है, उसके लिए मुक्ति के द्वार पूरी तरह से खोलेंगे। यदि मनुष्य इस कथा के मूर्ख पक्षी की तरह अपने परिवार में ही लिप्त रहता है, तो ऐसे व्यक्ति के समान है जो उच्च स्थान पर केवल नीचे गिरने के लिए चढ़ा ही चढ़ा हो। यानी इसमें भक्ति सागर एक पर्पल लिखते हैं, आप देखिए, ह्यूमन बीइंग आर मोर क्वालिफाइड टू अचीव इटर्नल बेनिफिट दैन एनी लिविंग एंटिटी अदर फ्रॉम लाइफ, बट लाइक एनिमल हो, बर्ड्स हो, क्योंकि ह्यूमन इज इंटेलिजेंट है। यह देखा जाता है, इट इज इजीली सीन बाय ह्यूमन बीइंग दैट आर अनेबल टू गिव अप अटैचमेंट फॉर देयर वाइफ एंड चिल्ड्रन। In this way, human beings who do not understand the consequence of a miserable materialist life become attached to enjoying the accession of their fellow human, and thus are just like a prison family. As long as human beings are alive, they should try to learn this lesson from the above mentioned eight spiritual master. ये कौन सा है, ये 24 गुरु से 8 गुरु है, 8 spiritual master, and thus attain life's ultimate goal to see the earth, air, sky, water, fire, moon, sun, and pigeon. Pigeon the 8 number. ये already चर्चा हो चुका है. With the mere knowledge of external world will only increase one's first person catechism. But the sharp internal vision, if one considers them as worshipable rather than object of his enjoyment, then his inclination toward Krishna will increase. He will become eligible to attain liberation even while living in this world. तो ये मतलब
पास्ट टाइम बता रहे हैं। और इसी प्रकार भागवत में अलग अलग श्लोक आता है। ह्यूमन शरीर जो है ये किसके लिए बना है? ये एक्चुअली मनुष्य के जो मुक्ति के लिए, यानी ह्यूमन शरीर जो है तो नहीं कर, भागवत में बनना था, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ह्यूमन शरीर। तो क्यों चर्चा करें बात है? क्योंकि भगवान इसी के माध्यम से ज्ञान देते, अटैचमेंट टू डेंजर। जैसे उद्धव गीता में ये चीज का आ रहा है और भगवत गीता में अटैचमेंट। बट हम लास्ट पर चर्चा किए थे, इसी प्रकार जैसे अटैचमेंट था, इसी प्रकार शोक, शोक मीन्स लामेंटेशन करते थे। युधिष्ठिर महाराज भी अत्यधिक लामेंटेशन करते, बट भगवान का अद्भुत कर्मणा, भगवान परमात्मा हृदय में रहते हैं युधिष्ठिर महाराज के अंदर। भगवान सामने बोलते हैं डोंट लामेंट, ये जो सब राजा मर गए सब, वो आपका कोई दोस्त नहीं, उनका गलती था। बट भगवान आदि परमात्मा से कृष्ण महाराज डोंट लिसन टू मी, मतलब डोंट लिसन टू कृष्ण। क्यों? भगवान का और की इच्छा है, उनकी शुद्ध भक्त भीष्म में बैठे हैं, उनसे ज्ञान प्राप्त करेंगे, बिकॉज इज ओल्डर, और वो चाहते हैं उनकी इच्छा पूरा हो। इसलिए भगवान कुछ कार्य करते हैं। वहां पर अर्जुन का जो जो अटैचमेंट को, मोह खत्म नहीं कर पा रहे थे फ्रॉम द बिगिनिंग, और यहाँ पर युधिष्ठिर महाराज की शोक खत्म नहीं करते, बट फाइनली बोथ आर एक्चुअली मतलब ठीक हो गए। तो यहाँ पर उद्धव गीता में ये भी अटैचमेंट की बात बता रहे हैं, जो हम अनलो स्टडी से पढ़ रहे हैं। और जो 7 जो मतलब गुरु है, जो चर्चा हो चुका है, और आगे जो 9th गुरु से लेके मतलब जो 24 गुरु, और भगवान क्यों कहते हैं यू बिकम योर ओन गुरु, व्हाट इज अंडरस्टैंड बाय इंट्रोस्पेक्शन, बाय कंटेम्पलेशन, बाय निध्यासन, है ना, इंडिपेंडेंट थॉटफुलनेस, यू बिकम योर गुरु, लॉर्ड सेज। व्हाट डज मीन? तो उसका हम नेक्स्ट क्लास में डिटेल चर्चा करेंगे। Now I'll take some question if anybody has some points regarding this one. Okay? Then further you have time to discuss. Yes, please raise your hand if anybody has comments and questions. Yes, brother. हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी, ये जो कबूतर कबूतरी का एग्जाम्पल भगवान ने एग्जाम्पल देकर उद्धव जी को समझा रहे हैं, तो उनका कोई पास्ट टाइम है उस कबूतर कबूतरी का? नहीं नहीं, इसलिए आप खींचे मत। कोई एग्जाम्पल होता है ना, डोंट एक्सटेंड मोर, जो चीज बता जा रहे हैं उसमें हम समझे। ये पास टाइम था, कब तक का था, वो था, वो नहीं है। अब अभी 24 गुरु पढ़ेंगे, वहां पर सूर्य भगवान सीखे, पृथ्वी सीखे, तो क्या पृथ्वी का पास टाइम तक ना? डोंट कंसिडर दैट वे। यहाँ पर दैट लेसन दे रहे हैं, क्या शिक्षा मिल रहा है, क्या लेसन वी आर गेटिंग। डोंट बी एक्सटेंड द एनालॉजी। हाँ, उन्हीं के माध्यम से, उन्हीं के वो कैसे आसक्त हो गए थे, उनके बच्चे हुए, फिर अंडे हुए, तो अंडे से बच्चे हुए, फिर उसमें आसक्त हो गए। तो इसी तरह से हम लोगों को भौतिक संसार में तो आसक्त हैं, लेकिन उसमें बहुत ज्यादा अटैचमेंट एक तरह से नहीं होना चाहिए, जो अपना यहाँ पर पॉइंट है, कोई भी एक्चुअली मतलब खासकर गृहस्थ आश्रम में जाता है, जैसे चक्रव्यूह में कोई जाता है, चक्रव्यूह से वापस आने की पता होना चाहिए, यानी वांट टू गो राइट टाइम एंड लीव फ्रॉम राइट टाइम। मतलब यहाँ पर बता रहे हैं इंटरनली अटैचमेंट डेवलप नहीं करना चाहिए, एंड व्हाट एवर अटैचमेंट डेवलप एक्सटर्नली, इंटरनली भगवान से करना चाहिए। एक्सेसिव अटैचमेंट नॉट गुड। Okay, that's the point. So somebody people says I am actually responsible, you people are not responsible. In name of response one should not attach, and कोई बोला मैं detach हूँ, but in name of detachment one should not be irresponsible. That's the point. So we have to balance responsibility, detached responsibility. Yes, Smriti करना दे। Hare Krishna and Pranam Prabhuji. Prabhuji, this balancing is the toughest part. How do we do that? ये मतलब बहुत बारी ऐसा होता है कि कभी टेम्पल में सेवा है, अभी जैसे कल राधाष्टमी है, बट देयर आर घर में अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, तो ये बैलेंस का प्रभु जी कैसे? बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम्स मतलब मेनी टाइम्स इट लीड्स टू एक्चुअली फ्रस्ट्रेशन, बिकॉज वो दिक्कत हो जाती है प्रभु जी। हाउ डू वी बैलेंस का एग्जैक्टली क्या मतलब होता है? हमें ज्यादा प्रेफरेंस किसको देनी चाहिए, कैसे करें प्रभु जी? माता जी, जो मैं समझता हूँ, देखिए हम दीक्षा लेते हैं, गुरु धारण करते हैं, बट ज्यादा जो हम गुरु से मतलब इंस्ट्रक्शन मिलता है,
मोटा मोटी ये कार्य करने का, बट माइनर इंस्ट्रक्शन हमको मिल नहीं पाता, और मिलता है तो हम इतना फ्रिक्वेंटली गुरु से नहीं मिल पाते, और गुरु भी हमको इतना अच्छे से नहीं जानता है, हमारा लाइफ स्टाइल, हमारा हॉबी, हमारा इंटरेस्ट ऑफ एरिया ऑफ वर्क सर्विस नहीं जानता था। तो इसीलिए हर व्यक्ति को मतलब आजकल जैसे हम भक्ति को मानते हैं कि नहीं, तो कोई जो भी लीडर मानते हैं, एक होता है मैनेजरल अथॉरिटी होता है, एक होता है स्पिरिचुअल अथॉरिटी। तो हर व्यक्ति को अपना स्पिरिचुअल प्रोग्रेस करने के लिए एक स्पिरिचुअल अथॉरिटी ढूंढना पड़ता है, जिसके माध्यम से वो क्या कर सकता है, मैक्सिमम भुवम आकृति को उचित कर सकता है स्पिरिचुअली, नॉट मैटेरियली। सो सो ही कैन गाइड और सी कैन गाइड। तो इसीलिए जैसे हम कहते हैं काउंसलिंग काउंसिल सिस्टम, जैसे जैसे आप कोई डॉक्टर है एक्चुअली, फॉर एग्जाम्पल आपको ये कुछ ऐसे डिजीज हुआ, वो डायग्नोसिस आपके डॉक्टर के पास मेडिसिन कर रहे हैं, बट आपको ना इलाज करते करते भी ठीक। यस माता जी, ऑडिबल? प्रभु जी मुझे आवाज नहीं आ रही है। इट्स एवरीबॉडी और फॉर यू ओनली, शीतल माता जी, इट्स एवरीबॉडी और अनम्यूट योरसेल्फ। शीतल माता जी, अनम्यूट योरसेल्फ। मेरा दी प्रभु। कृष्ण प्रभु जी, आई कैन हियर यू। ओके ओके, थैंक यू। सो यस माता जी, तो प्रैक्टिकली क्या करना पड़ेगा? जैसे हम लोग एक्चुअली ढूंढते हैं अपना इलाज करने के लिए, डॉक्टर के पास इलाज करते हैं, फिर मेडिसिन खाते हैं, बट हमारा बीमारी ठीक नहीं हुआ, तो हम क्या करते हैं, उसी हम अल्टरनेट डॉक्टर जहाँ पे हम पता करते हैं कहाँ से ठीक होगा। लाइक दैट हमारी लाइफ में ना क्लोजली ऑब्जर्व करने वाले एक दो तीन चार जो भी है, मिनिमम दो तीन डिवोटी होता है, अच्छा है, ताकि हम डिफरेंट डिफरेंट इंस्टीट्यूशन मिलेगा, हम उसको कंपेयर कर सकते हैं, जो ये भी बोला सही, ये भी बोला, अब मैं भी अपना इंटेलिजेंस सोच रहा हूँ चाहिए, जो अपना एक्सपीरियंस सोच रहा हूँ चाहिए, देन इनका बैलेंस। अदरवाइज क्या होता है, हमारा भक्ति ज्यादातर क्या होता है, बिगिनिंग स्टेज इन द विदिन अप टू द 15 इयर्स लगभग, फ्रॉम द बिगिनिंग, फ्रॉम द डे वन 15 इयर्स जो भक्ति होता है, ये अनिश्चित भजन में आता है। माधुर्य का आदमी बताते हैं अनिश्चित भजन में आता है। एक होता है जब हमारा अनर्थ खत्म होता है, तो फिर अर्थ प्रवृत्ति आएगा। अब हम जो भक्ति करते हैं, तो कोई ना कोई माध्यम से हम मोटिवेट होकर भक्ति करते हैं, और नहीं तो हमको कोई मोटिवेट कराते हैं अपने प्रोजेक्ट को निकालने के लिए। ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है। जैसे मान लो मैं सपोज मैं एक अधिकारी हूँ, मुझे ये प्रोजेक्ट निकालना है, और इसके पास एक्सपर्ट ये है, तो उसको मैं से मोटिवेट कराऊंगा, हाँ वो काम हो जाए। लेकिन वो मैं नहीं देखूंगा जो उसका क्या नीड है, क्या उसका इंटरेस्ट है, क्या कंसर्न है, मतलब नाइस प्रिंसिपल। तो अथॉरिटी को सोचना चाहिए जो उसको एंगेज कराता है उसका नाइस क्या है, नॉट हिज नाइस। मैं एंगेज कर रहा हूँ आपको सेवा में, मैं अपना नाइस नहीं देखना चाहिए, आपके एंगेज कर रहा हूँ, आपका नाइस क्या है, आपका नीड क्या है, आपका इंटरेस्ट क्या है, आपका कंसर्न क्या है, आपका एक्सपेक्टेशन क्या है, देन आई विल एंगेज देन वी विल कंटिन्यू फॉर द लॉन्ग टर्म एंड ऑल्सो विथ हैप्पीली। अदरवाइज मेंटल फ्रस्ट्रेशन तो है, और जो स्पिरिचुअल फ्रस्ट्रेशन होता है उसका कोई इलाज नहीं, आदमी बहुत परेशान होता है। वो तो सेवा करना चाहता है, लेकिन उसको मतलब सेवा तो हो गया, बट उसके जो दूसरा पार्ट को टेक केयर नहीं करता है, और कभी कभी ये मैक्सिमम केस में होता है। तो वन हैज टू बी वेरी वेरी इंटेलिजेंटली हैज टू बैलेंस। खुद ही पता चलेगा मैं इतना सेवा करने के बाद मैं कुछ मान लो अपना साधना नहीं हो पा रहा है, कि मेरा कॉन्शियसनेस ठीक नहीं हो पा रहा है, तो लेट मी रिड्यूस सम सेवा, क्या मतलब है, आई शुड बी एक्चुअली मतलब मतलब फ्रंट लाइन में आना चाहिए, बैक लाइन थोड़ा सा कुछ लाइक दैट वन हैज टू check and balance, so that इसका सॉल्यूशन हो सकता है, ऐसे नहीं नहीं हो सकता है। एंड ये भी एक्सपीरियंस में आता है, जैसे आप आदमी परेशान होता है, एक्सपीरियंस करते हैं, फर्दर डोंट रिपीट दिस सेम थिंग, तो वैसे एवरीबॉडी अंडरगो दिस। इसलिए कहते हैं द मोस्ट फॉर्चुनेट पर्सन इन दिस वर्ल्ड हु गेट वेरी नाइस गाइड। गाइड मींस every moment actually get guided, that is the most fortunate, otherwise sometimes you become unfortunate until unless you have not get the proper guide. So, okay Mataji, somehow Absolutely, Prabhuji. Thank you so much, Prabhuji. Thank you. very Hare good. Krishna. Yes, anybody has any comments, something, points, raise a hand. What to discuss? Thank you for your nice questions, the practical questions, and a lot of devotee this challenge. Yes, Sital Mataji, any points you have, comments? Sir?
Hare Krishna Prabhuji. Yes. Pranam. It was a nice practical session. प्रभु भी मतलब ये समझ तो ये वाला सेशन तो समझ आया प्रभु लास्ट सेशन थोड़ा डिफिकल्ट लगा था बट दिस सेशन आई कुड रिलेट टू प्रभु जी Actually क्या हुआ लास्ट सेशन क्यों डिफिकल्ट था I tell you. I in the last time I explained so many things जो कि ऐसा कॉन्टेस्ट था और सम फिलोसॉफिकल पॉइंट था जो कि चतुर्मुखी भागवत हमने डिस्कशन किया था so many things is said. So that's why otherwise we will not go with that. The first class I was giving standard how let's see how you were capturing. Then today I reduce myself and wherever possible. And now we just discuss this point. Now also some devotee has confusion maybe how Chavish Guru came to picture. Now we are discussing one Guru. So we will also discuss this context so that we have to connect with it. Otherwise, see, because we are not studying only Uddhav Gita, we are studying Bhagavad Gita or Uddhav Gita. So we just analyze study. So we'll jump one some section, some theme of Bhagavad Gita. Also, that is a series. Now we are discussing first chapter. First chapter the attachment, and from attachment, this theme we are connecting. And in discussing, we also missing some of the points. So we'll cover that. Next class we'll cover the Chablis group part little bit, the connectivity, and so that will not miss. So in this way, we'll cover the Uddhav Gita and also practical lesson and also the parallel study of the Uddhav Gita and Bhagavad Gita. Okay, and that is the point. Okay, Mataji? yes yes Prabhu ji thank you got the point thank you Prabhu ji Thank you for input. We'll take care of that. thank you Yes, Pranam. yes, Nilad, you have any points discussion? No, Prabhuji. Okay. Thank you. If you want to continue further, we'll stop now. Tell me as your wish. We have a 7 minutes. What do you want? Want to pause now or as per interest? Hare Krishna. Okay, I put the actually new theme for 10 minutes, 5 minutes. Then let's see. So this is the theme we discussed. The next class we'll see the guru actually. Let's see that part. Yeah, then yeah. So point here. Point here. Okay, we'll take the next class, the 24 hours, and become our own guru. We're not talking now. I'm just going to another where the first chapter of Bhagavad Gita that talks about the this is the first time. But when second chapter comes, okay, second chapter comes, then you start arguing. Okay, that further argument. Okay, I'll not fight Bhagavad Gita. Okay. Sanjay told, okay, see now left to Gandhi and say shut down because it is a fight. Then second chapter says that okay, then Lord says something to Krishna Arjuna. Okay. Then finally Lord actually two verses told, okay, you are Anarya, how is it to come? No. So कहाँ से आया actually? Clavium, just friendly some chastisement so that he'll fight. Okay. So this is sarcastically an encouragement in one sense. Okay. So and finally, then also Arjun start okay, yeah, you actually you're telling to kill actually, and how can you kill? You did kill your father, mother like that. How can you kill? Then it's very difficult. Let me go for the begging. Okay, I'll not fight. Then finally, I don't know what is good or bad. Then finally, told, okay, carbon dose of so uh, let me actually say surrender to you because I don't understand what is dharma actually. Now he's not asking some problem of fighting. He's saying actually, I don't understand the path of dharma. I'll not go to Vyasa, I'll not go to Vishnu, I'll not go to anybody. You were only because no material solution to the can say because I am asking some bigger problem, not only the fighting problem.
solve my problem. I'm going to disciple and I'm surrender you, and whatever you want, what is good for me, you tell. In this context, that Uddhav was also asking same thing. Okay, we'll discuss this point the next class. But today I'm telling because of connectivity. But next class we'll discuss the 24 Guru, how the connectivity comes. Otherwise you will miss the point. Here saying, Uddhav saying, Yogesha Yoga Vinyasa Yogatmana Yoga Sambhava निश्चयस्यामे पक्त त्याग सन्यासी लक्षण 11 chapter 7 same actually Uddhav saying oh master of all types yoga yogesa yoga vinasa okay and you are actually teacher of the gyan yoga yogatmam yoga sambhava and you are embodiment of all yoga oh lord you make an appearance for the bhakti yoga also. Okay, so please, you have explained renunciation performed by sannyasi for the highest benefit. Okay, so he's saying that please tell me, okay, so all types of yoga, how bhakti yoga is good. Nuance is asking. So in this way, Arjuna asking, okay, what is good for me actually? I don't know what is good for me. Like that, the couple of verses now Uddhav was asking, okay, that please my mind is attached to the sense enjoyment. I am not actually, and also especially those people actually bereft of the devotion to you. Okay, and such renunciation of the material enjoyment is most difficult to perform bhakti actually. तो ये मेरा ओपिनियन है बट तो मैं तो खुद ही एक्चुअली ममकार अहंकार में अटैच चुका हूँ सो प्लीज मुझे गिव इंस्ट्रक्ट मी आई एम योर सर्वेंट सो दैट आई कैन इजीली accomplish the jnana you explain me. Okay, like that, just like Arjun is asking, please give me some knowledge. Please tell me what is true dharma. Also, Uddhav is asking same thing. So then further, Krishna will take in a new direction. That is the point in the analysis study of the Uddhav and also Arjun. So we have to compare the, so you can note down verses whenever I give the section. Now the second chapter, 1 to 7 verses, equivalent that 11 to 7 to 14 to 18 verses. We'll discuss in the next class. Next class we'll discuss the 24 Guru, how the connection came, and you become your own Guru. How Krishna is explained to Uddhav. Otherwise you will misunderstood. You become one Guru, then हम किसके पास जाना जरूरत नहीं, दिखा लेना जरूरत नहीं, सिखा लेना जरूरत नहीं, you become one Guru. तो बोला गया इसका मतलब क्या है? So that is a deeper meaning in this understand, and in that lesson जो 24 Guru कैसे आया, what lesson literally taught, because to give some connection, because we discussed detail with the 8th Guru, the vision of Kavatur first time. Excessive attachment is not good, जो ये नर का रास्ता खोलता है, मुक्ति का द्वार नहीं खोलता है ना? वैसे attachment था for the Arjun, now the attachment here also discuss. That context we discussing. But further we will discuss the connectivity, then we will discuss this connection. Second chapter. First chapter connection understood. The second chapter connection of the Bhagavad Gita. Here that also Uddhav is asking same question. Please tell me Bhakti Yoga something. Just like I am becoming Guru, and also you instruct me. I also want to get knowledge from you. Okay, so we I think pause here. Now time is over. So anybody has any comments? We have 1 minute left. Any feedback or something you want to give? Yes, we just go. You want to give some feedback? Let me feedback. Pranam Prabhuji, Hare Krishna. Hare Krishna. Yes. Any feedback? Actually, any very nice sessions. This last 2 sessions. Today I slightly joined late, but last time I was listening and start of Uddhav Gita. It was very nice actually, and it seems to be for me this Gita is more. Meaning more detachment is there is comparison to that Arjuna Gita. So it's great to listen, I think.
Actually, if you said a very nice point, but the contest of Gita to Arjun, for Krishna, Odita, and the Srimad Bhagavad contest. You see, Arjun was not fighting. Well, let's just encourage you fight. Krishna spoke in that way. But the contest of the Srimad Bhagavatam, that is different. Why? Paritimar is 7 days. So Sukadeva Goswami has to, you know, speak something, or you can say encourage a word. So in that way, Bhagavatam is a fully detachment thing actually. But Bhagavata nowhere is a very some people is fully detached discuss. Literally. But Bhagavatam, so many past times, and especially in the Bhagavad Gita of Uddhav, the very philosophical part of the Uddhav Gita, lot of actually detachment. Just like आप मूवी देखते ना हिंदी मूवी में, जैसे एक प्रेमिका प्रेम का चलित चलता है पार्ट 1 में, अच्छा फिर नेक्स्ट सेकंड हाफ में होता है उसका मतलब स्थिति खराब, जैसे पुरुरवा और जो उर्वशी का जो मिलन होता है ये 9th कांड में आता है, बट उसका जो उर्वशी छोड़ के चला जाता है, जैसे प्रेमी को रोता रहता है और क्या क्या करता है, वो सेकंड हाफ में आया वो उद्धव गीता में। तो ये भी आप देखिए, फर्स्ट पार्ट इसी 9th कांड में, बट सेकंड पार्ट आप चर्चा करते हैं भगवान कृष्ण पार्ट, भगवान कृष्ण देते हैं एग्जाम, वो लॉट ऑफ लेसन देते हैं। माय गॉड, जैसे कपिल भगवान देते हैं ना वार्निंग फॉर द डेंजर ऑफ, वहां पर कृष्ण भगवान भी खतरनाक वर्ड्स बोलते हैं। बस this is actually Bhagavatam only for the actual nothing Vairag Vidya. Isn't it? So we have to understand as per our conditioning, as per our progress, we have to practically imply now some of that. Thank you for nice person. So now we pause here. Thank you so much for interest. We'll meet next Monday. Okay. Hare Krishna. Hare Krishna. Thank you, Prabhuji. Hare Krishna, Prabhuji, Pranam. Hare Krishna. Hare